Hello everyone. Good morning dear students. Today we are going to discuss the topic orbital velocity and its numericals. Orbital velocity. It is the velocity required to put a satellite into its orbit around the earth. Okay, velocity required to put a satellite into its orbit around the earth. As velocity is a vector quantity, so its direction at any instant is along the tangent to that orbital path of satellite at that instant. Let us suppose satellite is at this point at an instant, so its direction of the velocity will be along the tangent to the path at that particular point. Let us suppose this is the earth of mass capital M, center O, and capital R is the radius of earth, and this is the satellite which is revolving around the earth at height h from the surface of earth. And if we will measure the distance from the center of earth, we are assuming it as small r. Small r is the radius of the orbit in which satellite is moving. Mass and radius of earth. Capital M is the mass of earth and r is the radius of earth. Mass of satellite is small m and orbital velocity is VO. Here we have to find the formula of VO. We have to derive it. As satellite is revolving in the circular orbit, so the force required to move the body in circular orbit is called centripetal force, and here the centripetal force required to keep the satellite in the circular orbit is provided by gravitational pull of the earth. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सो हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी ओ स्क्वेयर अपॉन आर. दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, small m mass of satellite divided by r square, and here small r is equal to capital R plus h. So this is the diagram. So small m से small m cancel हो जाएगा, एक r से एक r cancel हो जाएगा. We will get VO square orbital velocity का square is equal to g capital M upon r. Here VO is the orbital velocity. तो स्क्वेयर हटाने के लिए टेक स्क्वेयर रूट बोथ साइड. सो VO इज इक्वल टू रूट ओवर GM अपॉन स्मॉल r. And here small r is equal to r plus h. So we can also write GM upon r plus h. This is the formula of orbital velocity. It is very simple. Centripetal force is equal to gravitational force. Put both the forces in equality and just solve it. We will get the formula of orbital velocity, and its formula is here. VO is equal to root over GM upon R plus H. Dear students, we know that small g, acceleration due to gravity on the surface of earth, is given by gm अपॉन आर स्क्वेयर. ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं. तो यहाँ पर gm की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू जी आर स्क्वेयर. तो यहाँ पे gm की जगह पे आप जी आर स्क्वेयर पुट कर सकते हैं.
सो वी विल गेट वी ओ इज इक्वल टू जी एम की जगह पे जी आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच। ओके, आर स्क्वेयर को आप बाहर निकाल सकते हैं रूट से, तो बन जाएगा आर रूट ओवर जी अपॉन आर प्लस एच। दिस इज अनदर फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पे कितने फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं, कितने फॉर्मूले हैं, बात एक ही है वैसे। फर्स्ट है जी एम अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और वी कैन राइट इट लाइक दिस जी एम अपॉन आर प्लस एच if separately height is given, or we can also use r root over g upon r plus h. Okay, now if satellite is revolving very close to surface of earth, means h is very small as compared to radius of earth. So इस फॉर्मूले में हम से h को यदि हम नेगलेक्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा वी ओ इज इक्वल टू रूट ओवर जी एम अपॉन आर। और जैसे हमें पता है जी एम का जो फॉर्मूला है वो है जी आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे यदि आप जी आर स्क्वेयर पुट करते हैं आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट root gr, but this is only when satellite is revolving very close to surface of earth. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला है, जस्ट वेट। g कितना है यहाँ पे, g की वैल्यू है 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो 9.8 जो है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 किलोमीटर है। दोनों को आप सेम यूनिट्स में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे g और r की वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्व इट। फाइनली वी विल गेट ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू वी ओ इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी when satellite is revolving very close to surface of earth. Here h is neglected. Next, now we have to find time period of a satellite, कि एक कंप्लीट राउंड लगाने में सैटेलाइट कितना टाइम लेती है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। जस्ट वेट, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी ओ। आप दोनों की यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वी ओ का क्या फॉर्मूला है, रूट ओवर जी एम अपॉन आर। यदि यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं वी ओ की, तो वी ओ डिनोमिनेटर में है तो ये बन जाएगा 2 पाई आर रूट ओवर, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका आर अपॉन जी एम। पर एक आर बाहर भी है और एक अंदर भी है। अंदर वाले को तो बाहर नहीं निकाल सकते, बट ये बाहर वाले को यदि आप अंदर लेके जाएंगे तो ऑलरेडी एक तो अंदर ऑलरेडी है कि बाहर वाला जो है अंदर जाके आर स्क्वेयर हो जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आर क्यूब अपॉन जी एम। और जैसे कि हमें पता है यहाँ पे जो स्मॉल आर है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। जस्ट पुट द वैल्यू, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। This is the formula of time period which we can use anywhere. And if satellite is orbiting very close to surface of earth, h is very small as compared to r, तो h यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा तो r क्यूब बनेगा आपके पास। तो क्या बन जाएगा आपके पास, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर
आर क्यूब अपॉन जी एम की जगह पुट कर सकते हैं हम जी आर स्क्वेयर। सो आर स्क्वेयर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक सिंगल आर बचेगा ऊपर। सो 2 पाई रूट ओवर आर अपॉन जी। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड दैट इज 6400 किलोमीटर। जी की वैल्यू है 9.8। दोनों की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। सो फाइनली हमारे पास टी की वैल्यू आएगी 84.6 मिनट्स। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ वेयर हाइट h is neglected. Okay, otherwise this is the general formula of time period. Next, now we have to find the orbital height of the satellite. h की वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, तो we will use the formula of time period. t is equal to 2 pi रूट ओवर r प्लस h का होल क्यूब अपॉन gm. This is the formula of टाइम पीरियड. स्क्वेयर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम. अब जैसे हमें एच निकालना है तो एच वाला फैक्टर एक साइड रखेंगे, बाकी सारा दूसरी साइड ले जाएंगे. तो हमारे पास बनेगा आर प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जी एम डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा हमारे पास जी एम टी स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर. ओके, अब यहाँ पे यदि हम ये करते हैं, जी एम की जगह जी आर स्क्वेयर भी पुट कर सकते हैं, और इधर लेफ्ट साइड में क्यूब है, क्यूब को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेक क्यूब रूट बोथ साइड. तो बन जाएगा आर प्लस एच. क्यूब रूट का मतलब ये हुआ जी एम की जगह हमने पुट कर दिया जी आर स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, और जब क्यूब रूट लेंगे तो टोटल पावर हो जाएगी 1/3. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर प्लस एच. जैसे कि हमें यहाँ पे एच निकालना है तो आर लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा है, राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा. तो बन जाएगा आपके पास जी आर स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर की होल पावर 1/3 minus r. This is the formula of height of satellite from the surface of earth. Any doubt? Okay, then if we are talking about geostationary satellite, हमारे पास यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला क्या आया, h इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर स्मॉल जी अपॉन 4 पाई स्क्वेयर की होल पावर 1/3 माइनस आर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए जो टाइम पीरियड है वो हमें पता है 24 आवर्स होते हैं. ओके, और आर रेडियस ऑफ अर्थ वो हमें पता है 6400 किलोमीटर. स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो सारी हमारे पास टी की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, जी भी है, 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, आर की वैल्यू हमें पता है. पुट ऑल दीज वैल्यूज बट इन सेम यूनिट्स. जैसे यहाँ पे मीटर ले रहे हैं, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ पे आवर ले रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड है. use the same units and put all these values and solve. We will get h is equal to 35,930 kilometer. So this is the height from the surface of earth
at which these geostationary satellites revolve around the earth. Okay, next, this is a numerical. An artificial satellite revolves around the earth at a height of 1000 किलोमीटर. तो यहाँ पे दिस इज सॉल्यूशन. हाइट इज गिवन. हाइट कितना है? 1000 किलोमीटर. रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन 6.38 इंटू 10 रेज टू पावर. रेडियस ऑफ अर्थ, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे. यदि हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो 6.38 इंटू 10 रेज टू पावर 3 आएगा किलोमीटर. रेडियस ऑफ अर्थ, इसको आप ठीक कर लें. 6.38 इंटू 10 रेज टू पावर 3 किलोमीटर. और यदि आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो बन जाएगा 6.38 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है, वो हमें पता है वैसे. 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर. ओके, all these values are given and what we have to find is orbital velocity and period of revolution. तो दोनों का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है VO इज इक्वल टू √/gm अपॉन r प्लस h. तो यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू ये हो गई. m मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है क्वेश्चन में. सो मास ऑफ अर्थ कितना होता है दैट इज नॉट गिवन. या तो आप अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं. मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg. यदि आपने मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट नहीं करनी तो एक और मेथड भी है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. कैपिटल जी की वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ अर्थ पुट कर दो, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन, हाइट इज गिवन. पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड सॉल्व. वी विल गेट द आंसर 7364 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हैं. और दूसरा फॉर्मूला जो है, जैसे इस क्वेश्चन में मास ऑफ अर्थ इज नॉट गिवन, सो एक और फॉर्मूला है ये वाला. VO इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी R इंटू √/g अपॉन R प्लस h. तो यहाँ पे आपको मास की वैल्यू पुट नहीं करनी. मतलब इसी फॉर्मूले में GM हमें पता है. GM किसके इक्वल होता है? GM होता है GR स्क्वेयर के. तो GM की जगह पे GR स्क्वेयर पुट करेंगे तो हमें मास नहीं चाहिए. देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल विदाउट मास. देन वी विल गेट दिस आंसर. ओके, दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी. देन वी हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. तो वैसे तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला और भी है, बट उसकी बजाय हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करेंगे. तो सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस आ जाएगा 2πr अपॉन वेलोसिटी VO. तो 2πr की जगह पे 2πr जो है स्मॉल r सेंटर से है, तो ये हो जाएगा r प्लस h अपॉन VO. तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 7364. R रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है. H हाइट ऑफ सैटेलाइट that is 1000 kilometer, that is also given. Put all these values and solve. We will get 6297 second. Calculations are little longer, but you can do it by your own. This is the next question. An artificial satellite is going round the earth close to its surface. What is the time taken by it to complete one round? टाइम टेकन बाई इट टू कंप्लीट 1 राउंड की बात हो रही है. ठीक है, तो डायरेक्टली हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस, जस्ट थिंक ओवर इट. हमें क्या निकालना है यहां पे? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड. ठीक है, तो टाइम निकालना है. तो टाइम का जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला होता है? व्हेन इट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. एक्चुअल में तो इसका फॉर्मूला है 2πr प्लस h
अपॉन वी ओ. ओके, बट व्हेन वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ एच इज नेग्लेक्टेड, तो बन जाएगा आपके पास 2 पाई आर अपॉन वी ओ. ओके, जस्ट नाउ पुट द वैल्यूज. अब वी ओ आप निकाल सकते हैं. वी ओ का कैसे निकालोगे आप वी ओ? अब जब वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो क्या फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का? रूट जी आर. और रूट जी आर को सॉल्व करके हमने क्या आंसर निकाला था? जस्ट वेट, देख लेते हैं अभी. दिस वन कहाँ लिखा था? दिस वन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे एच को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला बना था रूट जी आर. रूट जी आर में जी और आर की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया था. तो ऑर्बिटल स्पीड जो थी वो थी हमारे पास 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड. बट ये किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये याद रखना है आपने. ठीक है, 7.9. सो यहाँ पे इसका हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, सो टू बी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज गिवन, and orbital velocity that we have calculated already, but you can use this formula as well. Put all these values and solve. So we will get the value that is approximately 1.41 hour. This is the time period of satellite when it is revolving very close to surface of earth. My dear students, I am repeating, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड. ओके, तो यहाँ पे स्मॉल आर का मतलब है 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वी ओ. और एज सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, एच इज नेग्लेक्टेड, 2 पाई कैपिटल आर अपॉन वी ओ. आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं कि व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, its orbital speed is 7.9 kilometer per second. By using both the values we can solve. And ये भी वैसे हमें याद ही होता है कि when satellite is revolving very close to surface of earth, its time period is 1.41 hour. Okay, next, total energy of satellite. अब हमें यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करनी है. तो टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आएगी? पहले तो हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. ठीक है, सैटेलाइट है, ये अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर, और सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस जो है वो है दिस स्मॉल आर. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और टोटल एनर्जी निकालनी है. और उसकी स्पीड है वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड एम इज इट्स मास ऑफ सैटेलाइट. सो एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी which we have studied earlier in another video. अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जिसे आप K से डिनोट कर सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर. V का मतलब वी ओ स्क्वेयर आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर. और यदि आप यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे वी स्क्वेयर बन जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास जी एम अपॉन आर. ओ सॉरी, ठीक है, ये वी स्क्वेयर, वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी एम अपॉन आर. तो ये वी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. अब हमने निकालना है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी के लिए हम सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे E, काइनेटिक एनर्जी का K प्लस पोटेंशियल एनर्जी का U. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी का पुट करो वैल्यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/2 -1, इसको सॉल्व करके बचेगा -1/2, सो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपके पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन हाफ है ना, तो 2r ये नीचे हो जाएगा। दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। और नेगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पे सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ, सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ। तो ये 3 टाइप की आपने एनर्जीज कैलकुलेट कर ली यहाँ पे। और एक और है 4th टाइप की एनर्जी जिसे आप कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है सैटेलाइट को इसके ऑर्बिट से फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द सैटेलाइट फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो जिस एनर्जी से सैटेलाइट अर्थ के साथ बाउंड है उतनी ही नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, तो दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, जब टोटल एनर्जी की वैल्यू पुट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द सैटेलाइट फ्री विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो चलो हम एक बार बात करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस बेटा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी यू। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है, बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है तो इसके अपोजिट जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। माय डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी को हम K से शो कर रहे हैं और टोटल एनर्जी को E से शो कर रहे हैं। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये तो सभी में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस, काइनेटिक एनर्जी में हाफ, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², सो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस, काइनेटिक एनर्जी में हाफ, टोटल एनर्जी में माइनस हाफ। और बाइंडिंग एनर्जी तो टोटल एनर्जी का अपोजिट है विद नेगेटिव साइन। ओके, तो याद रखना जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर सभी में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में साथ में आएगा माइनस, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा वही जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर तो सभी में आएगा, काइनेटिक एनर्जी में आएगा हाफ और टोटल एनर्जी में आ जाएगा माइनस हाफ। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर तो सभी में आएगा माइनस हाफ, पोटेंशियल एनर्जी में हाफ सॉरी माइनस, काइनेटिक एनर्जी में हाफ और टोटल एनर्जी में माइनस हाफ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट कैन बी डिफाइंड एज द minimum amount of energy required to be supplied to it in order to free the satellite from the gravitational influence of that particular planet, in order to take the satellite from orbit to a point at infinity। मतलब ऑर्बिट से उठा के आपने वो सैटेलाइट को इन्फिनिटी पर लेकर जाना है, वो सैटेलाइट फ्री हो जाएगी। जितनी एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और इसका यहाँ पे फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। यू कैन से इट इज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। दिस इज अ न्यूमेरिकल just solution। see, a 400 kg satellite mass is given 400 kg in
is in a circular orbit of radius 2re, twice the radius of Earth, about the Earth, how much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4re? 4re. What are the changes in kinetic energy and potential energies? My dear students, ये आपके पास अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, रेडियस ऑफ अर्थ। पहले सैटेलाइट किसी एक ऑर्बिट में मूव कर रही थी जिसकी रेडियस सेंटर से जो है वो है 2re। अब आपने इसका ऑर्बिट चेंज कर दिया, इसको आपने शिफ्ट करना है किसी दूसरे ऑर्बिट में जिसकी रेडियस सेंटर से है 4re। सो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द सैटेलाइट फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट? ओके, ये आपने फाइंड करना है। और इस सेकंड ऑर्बिट में कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा और कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है यहाँ पर। ओके, सो हमें सबसे पहले मास इज गिवन 400 kg एंड इनिशियल रेडियस इज 2re एंड फाइनल रेडियस इज 4re। हमें निकालना है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब इस ऑर्बिट में जितनी एनर्जी होगी इसमें भी कुछ एनर्जी होगी, तो जितना डिफरेंस आएगा दोनों में दैट मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी इन फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन इनिशियल ऑर्बिट। दोनों का फॉर्मूला पुट कर दो। एनर्जी का फॉर्मूला था टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। तो जब हम यहाँ पे इनिशियल ऑर्बिट की बात करेंगे तो बन जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, यहाँ पे r पहले कितना था, पहले था 2re, तो 2 तो फॉर्मूले में है और 2re यहाँ से आएगा तो ये बन जाएगा 4re। और यदि आप एनर्जी इन फाइनल ऑर्बिट की बात करते हैं तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पे 4re था, 4 2 8re हो जाएगा। और ये फाइनल ऑर्बिट ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इनिशियल ऑर्बिट ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो फिर जी एम एम अपॉन आर तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा -1/8 माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, माइनस और माइनस प्लस 1/4। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो बन जाएगा आपके पास डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट टू फाइनल ऑर्बिट। तो ये बन जाएगा आपका, दोनों को इसको माइनस करके दोनों को वी विल गेट माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8re। सॉरी माइनस नहीं आएगा इसमें, माइनस क्यों नहीं आएगा, जब आप यहाँ पे करेंगे फाइनल में आएगा 1/8, माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा 1/4। माइनस 1/8 प्लस 1/4 को सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 1/8। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट और क्या हमें यहाँ पे फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना था, जस्ट वेट, ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज। हमें पता है रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी। तो चेंज इन टोटल एनर्जी यहाँ पे सॉरी डेल्टा E की वैल्यू जो थी वो क्या है, ये है जी एम एम अपॉन 8re। डेल्टा E इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8re। जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11। m इज द मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10⁻24। small m is the mass of satellite 400 kg and radius of earth that is given or we know 6.38 into 10⁻6 मीटर। पूरी वैल्यूज पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा E की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3.13 इंटू 10⁻9 जूल। एंड वी नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे डेल्टा K की वैल्यू आएगी -3.13
इंटू 10⁻⁹ जूल। और दूसरा निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी थी, इतनी थी, और उसका ट्वाइस कर देंगे तो 3⁻⁶ पॉइंट 13⁻26 इंटू 10⁻⁹ जूल। So this much change will be there in kinetic energy and this much change will be in the potential energy. तो ये याद रखना, kinetic energy is equal to negative of total energy and potential energy is equal to twice of total energy. ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। यदि हम चेंज इन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा लग जाएगा, यहाँ पे डेल्टा लग जाएगा, यहाँ पे डेल्टा लग जाएगा और यहाँ पे डेल्टा लग जाएगा। So in this way we can find the change in kinetic energies and change in potential energies. So this is all about the orbital velocity and its related numericals. Thank you. Have a nice day.